Hello students, how are you? I hope you are fine. Let us discuss today in this audio video, the related aggregates, the terms related to national income. In CBSE class 12, we have a chapter, a unit called national income and related aggregates. So there are terms those we must know before doing practical sums of national income. So let us see what are these terms. The first one is here related aggregates. See here, gross domestic product at market price. If the money value of all the final goods and services produced, it is the money value of all final goods and services produced during an accounting year with within the domestic territory of a country. भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा उनके मार्केट वैल्यू को मनी वैल्यू को जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपीएमपी कहा जाता है. In my own words, if I will say that all the goods and services produced within the domestic political India, that is the domestic territory of India, all the goods and services produced by all the producers, whether those producers are Indians or foreigners, but they are producing goods within the political boundary of India, the money value of the market value of those goods and services is known as GDPMP, gross domestic product at market price. GNPMP, gross national product at market price. Here what it is written, it is the money value of all final goods and services produced by a country during accounting year, including net factor income from abroad. What I will say here in easy term, all the goods and services produced by Indian nationals, Indian citizens, whether in India or outside India, whether in political India or outside political India, all the goods and services produced only by Indians. Indian means the who are Indians by citizenship. Their money value and market value is called GNP, gross national product at market price, GNPMP. So what we find difference between GNPMP and GDPMP? GDPMP includes the domestic territory. It includes the goods produced by Indians or foreigners. But the GNPMP includes the goods produced by Indians only. It means if goods are produced in India but they are not produced by Indians, that will not be taken in GNPMP. And if goods are produced outside India but if they have been produced by Indians there, then that value of goods of that goods and services shall be taken in the GNPMP. ओके, मतलब हिंदी में अगर समझाएं तो भारतीय डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए सारे गुड्स के मनी वैल्यू को जीडीपीएमपी कहते हैं. लेकिन जीएनपीएमपी में क्या होता है कि इंडियंस के द्वारा जो भारतीय नागरिक हैं, वेदर दे आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया और वेदर दे आर प्रोड्यूसिंग आउटसाइड इंडिया, in economic teaching is also production, hair cutting is also production. So whatever services they are, whatever economic activities they are carrying on, whether in India or outside India, भारत के अंदर या भारत के बाहर, उन सबको सिर्फ अगर वो इंडियन नेशनल्स के द्वारा किया गया हो तो इंडिया के जीएनपीएमपी में लिया जाएगा. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एक्चुअली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के दो पार्ट हैं. One part is FIFA and the other part is FITA. So what is FIFA? FIFA full form is factor income from abroad. FIFA, factor income from abroad. मतलब इंडियन नेशनल्स के द्वारा इंडियंस के द्वारा इंडियन सिटीजन्स के द्वारा इंडिया से बाहर से जो इनकम कमा के लाया जाता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, डिविडेंड, बोनस एक्सेट्रा, जो भी वो इंडिया से बाहर से कमा के लाते हैं इंडिया, दे आर FIFA. दैट इज FIFA. And what is FITA? There are foreign nationals who are working in India and earning here interest, rent, profit, salary,
profit, etc., and they are taking it away from the India. So that is FITA. So there are two parts of NFIA, net factor income from abroad. I say it sometimes NAFIFA, net factor income from abroad. So FIFA has two parts. One part is FIFA and other part is FITA. The difference between FIFA and FITA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इट इज पॉजिटिव इफ फीफा इज मोर देन फीटा, मीन्स इफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इट इज पॉजिटिव नफीफा. एंड इफ the condition is reverse, the FITA is more than FIFA, factor income to abroad is more than factor income from abroad, then it is negative. Components of net factor income from abroad, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अब नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब हो गया वही इंडिया में फॉरेनर्स के द्वारा कमाया गया सैलरी और इंडिया के बाहर से कमाया गया इंडियंस के द्वारा सैलरी, इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाएगा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इंडिया के अंदर फॉरेनर्स के द्वारा कमाया गया रेंट एक्सेट्रा और इंडिया के बाहर से कमा के लाया गया इंटरेस्ट एक्सेट्रा, रेंट एक्सेट्रा, इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाएगा नेट रिटेन्ड अर्निंग. मीन्स जो प्रॉफिट है ये इंडिया में फॉरेनर्स के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट और इंडिया के बाहर से कमा के लाया गया इंडियंस के द्वारा प्रॉफिट, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को, यानी रेंट, सिंपली बात समझिए कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, इन सब के डिफरेंस को ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में रखा जाता है. यहाँ कुछ फॉर्मूला है. NNP-MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. हाँ, one thing I would like to say, whatever is net that excludes depreciation and whatever is gross that includes depreciation, जो भी चीज़ नेट रहेगा उसमें डिप्रिसिएशन ऑलरेडी घटा रहेगा या घटा देंगे तब आएगा ग्रॉस में से, और whatever is gross, जो भी ग्रॉस है यानी वो इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन उसमें नहीं घटा हुआ. जैसे यहाँ देखिए NNP-MP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP, तो इसमें क्या करेंगे GNP-MP भी हम लोगों ने उसका डेफिनेशन देखा था, उसमें से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दे तो NNP-MP आ जाएगा. और अगर उल्टा रहता, अगर मान लीजिए NNP-MP में डिप्रिसिएशन जोड़ देते तो GNP-MP आ जाएगा. फिर यहाँ लिखा है NDP-MP. NDP-MP का फॉर्मूला यानी NDP-MP का फुल फॉर्म होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का डेफिनेशन हम लोगों ने ऊपर समझा है, तो उसमें से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वी गेट NDP-MP. और मान लीजिए हमको GDP-MP फाइंड करना है और क्वेश्चन में NDP-MP और डिप्रिसिएशन दे दिया है, तो GDP-MP इज इक्वल टू NDP-MP प्लस डिप्रिसिएशन. हाँ, फिर यहाँ देखिए दिया है NDP फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. हाँ, एक बात और थोड़ा समझा दे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? वट एवर इज मार्केट प्राइस, वेदर इट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज. यानी जब भी कोई चीज़ मार्केट प्राइस में है यानी उसमें टैक्सेस प्लस किया हुआ, सब्सिडी माइनस किया हुआ है. और जब भी कोई चीज़ फैक्टर प्राइस में है, फैक्टर कॉस्ट में है, यानी उसमें टैक्स और सब्सिडीज नहीं है. तो यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें अगर टैक्स और सब्सिडीज का काम नहीं किए हैं तो वो फैक्टर प्राइस में है, फैक्टर कॉस्ट में है. और जैसे उसमें टैक्सेस जोड़ देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस में चला जाएगा. तो अगर मान लीजिए हम फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस की तरफ जाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस प्लस सब्सिडी माइनस, तो विल गेट मार्केट प्राइस. मान लीजिए कहीं मार्केट प्राइस दिया हुआ और फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट में आना है तो मार्केट प्राइस में से उल्टा करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस एंड सब्सिडी प्लस, तो वी विल गेट फैक्टर कॉस्ट. और इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज के डिफरेंस को कहा जाता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो इफ indirect taxes is more and subsidy is less, then the difference between indirect taxes and subsidy is positive indirect taxes, net indirect taxes. And if indirect taxes is less than subsidy is more, then the difference between indirect taxes and subsidy is net indirect taxes, but that is negative. ये बात सब ध्यान दीजिएगा.
यहाँ देखिए लिखा भी है हुआ है NDP-FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP-MP में से देखिए मार्केट प्राइस में से फैक्टर प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला। GDP-FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस जाना है, देखिए नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट में डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे, तो ग्रॉस में बताया था पहले कि नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे, या ग्रॉस से नेट में आएंगे तो डिप्रिसिएशन घटाएंगे। तो तीन बातें ध्यान दिए, डोमेस्टिक, नेशनल, ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इन सब बातों को ध्यान दे रहे हैं। NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वही नेशनल इनकम रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत सारा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो आ जाएगा NDP-MP। फिर उसमें ऑलरेडी NDP-MP और उसमें फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी फीफा एंड फिटा का काम कर लिए, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे काम कर लिए तो हमारा आ गया NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि देश का नेशनल इनकम होता है। यहाँ लिखा नीचे में NNP-FC इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। नॉर्मल रेसिडेंट उसको कहते हैं जो मूलतः भारत में रहते हैं, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। NNP-FC का एक और फॉर्मूला है NDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम लोगों ने डिफरेंट फार्मूलाज को समझा, इसको समझिए अपने बुक से, फिर जो दिक्कत हो तो पूछिए।